یہ کوئی عام صبح نہیں تھی، یہ وہ پل تھا جب انسانیت کو چیتاونی دی جانی تھی۔ عرب کی تپتی ریت پر وہ صبح اسادھارن تھی۔ مکہ کی فضا میں ایک ادرشیہ سکون اتر رہا تھا، مانو سرشٹی سوئیں کسی مہان رہسیہ کے پرکٹ ہونے کی پرتیکشا کر رہی ہو۔ وہ دن سادھارن نہیں تھا، یہ اس نور کا دن تھا جس کے بارے میں آسمانوں نے صدیوں سے دعا کی تھی۔ حضرت محمد اللہ کے آخری رسول اس صبح عبادت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کی نماز میں ایسا ٹھہراو تھا جیسے سمے سوئیں ٹھہر گیا ہو۔ آپ کا ہردے انسانیت کے درد سے بھرا رہتا تھا۔ اناتھوں کی آہ، غریبوں کی خاموشی اور ظالموں کی کٹھورتا سب آپ کے سینے میں اتر جاتی تھی۔ اسی صبح جب سورج نے حجاز کی پہاڑیوں سے جھانکنا شروع کیا، آپ کے دل میں ایک وشیش بے چینی تھی۔ یہ بے چینی دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی تھی۔ جبریل امین نورانی شکل میں پرکٹ ہوئے۔ ان کی موجودگی سے پورا واتاورن روشن ہو اٹھا۔ انہوں نے سلام کیا، یا رسول اللہ۔ جواب میں آپ کی آواز میں وہی رحمت تھی جس نے پتھر دلوں کو بھی پگھلایا۔ جبریل نے کہا، آج اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دکھانا چاہتا ہے جسے دیکھ کر آپ کی امت سبق لے۔ ایک لمحے میں زمین اور آسمان کے پردے ہٹنے لگے۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ روح کا سفر تھا، جنت اور جہنم کی اور۔ جبریل نے آپ کا ہاتھ تھاما اور نور کی رفتار سے آپ ایک ایسے عالم میں داخل ہوئے جہاں سمے اور جگہ کے قاعدے بدل چکے تھے۔ پہلے جنت کے دروازے کھلے۔ وہاں کی ہوا میں ایسی ٹھنڈک تھی جو دل کو سکون دیتی تھی۔ ہر طرف ہریالی، بہتی نہریں اور ایسے محل جن کی اینٹیں سونے چاندی سے بھی زیادہ چمکدار تھیں۔ لیکن یہ چمک باہری نہیں تھی، یہ روحانی تھی۔ وہاں رہنے والوں کے چہروں پر اطمینان تھا، آنکھوں میں شرم اور دلوں میں شکر۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ نور سے گھرے ہوئے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں قرآن تھا، ہونٹوں پر ذکر اور دلوں میں توکل۔ جبریل نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں صبر کیا، سچ بولا اور امانت کی حفاظت کی۔ ایک جگہ آپ نے ان عورتوں کو دیکھا جن کے سر پر تاج تھے۔ وہ مائیں تھیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دین پر پالا۔ ان کے پیروں کے نیچے جنت کی خوشبو اور دلوں میں صدا کی راحت تھی۔ آپ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آپ نے دعا کی، اے اللہ، میری امت کو ایسی ہی نیکی کی راہ دکھا۔ پھر جنت کے ایک کونے میں آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو بہت کم تھے، اونچا تھا۔ جبریل نے کہا، یہ وہ ہیں جو اندھیرے میں بھی اللہ کو یاد کرتے تھے اور کسی نے نہ دیکھا تب بھی گناہ سے بچتے تھے۔ جنت کی خوبصورتی بیان سے باہر تھی، مگر آپ کے دل میں ایک بوجھ تھا۔ آپ جانتے تھے کہ کہانی کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ آپ نے جبریل کی اور دیکھا۔ انہوں نے بنا کہے سمجھ لیا۔ نور کا ماحول بدلنے لگا۔ ٹھنڈک کی جگہ ایک سخت گرمی نے لے لی۔ یہ جہنم کا دروازہ تھا۔ یہاں روشنی نہیں بلکہ آگ کی پرچھائیاں تھیں۔ چیخیں تھیں مگر رحمت کی پکار نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ چہرے پہچانے سے تھے، وہ لوگ جو دنیا میں ظالم تھے مگر خود کو کامیاب سمجھتے تھے۔ آپ کا دل کانپ اٹھا۔ آپ نے فرمایا، کیا میری امت میں سے بھی کوئی یہاں ہے؟ جبریل نے سر جھکایا۔ یہ اشارہ ہی کافی تھا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ نے اسی لمحے امت کے لیے دعا کی۔ راتوں کی تنہائی میں آگ کے اس منظر کے سامنے یہ کیول شروعات تھی۔ جنت کی راحت اور جہنم کی سختی دونوں کا سندیش صاف تھا۔ انسان کو چننا ہے کہ وہ کس راستے پر چلے۔ ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور دوسرا جہنم کی آگ کی اور۔ جنت کی ٹھنڈک کے بعد جب نور کا پردہ پوری طرح اٹھا تو سامنے جو منظر تھا اس نے روح تک کو ہلا دیا۔ یہ جہنم تھا، انسان کے اپنے ہی عمل کا جلتا ہوا آئینہ۔
यहाँ आग केवल जलाती नहीं थी बल्कि याद दिलाती थी कि अल्लाह की नाफरमानी कितनी महंगी पड़ती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजा एक अलग कौम, एक अलग गुनाह और एक अलग अंजाम के लिए था। आग की लपटें जमीन से नहीं बल्कि दिलों के गुनाहों से उठती हुई मालूम होती थी। पहला दरवाजा उन लोगों के लिए था जिन्होंने नमाज को हल्का समझा। वे दुनिया में कहते थे अभी वक्त है, यहाँ वक्त खत्म हो चुका था। उनकी जबानें सूखी हुई थीं और वे पानी की भीख मांग रहे थे, मगर जवाब में खौलता हुआ पानी दिया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह देखकर फरमाया, मेरी उम्मत में से जो नमाज छोड़ दे उसका अंजाम यही है। दूसरे दरवाजे पर वे लोग थे जिन्होंने जबान का गलत इस्तेमाल किया, झूठ, चुगली, गीबत। उनकी जबानें आग से खींची जा रही थीं। हर चीख एक गवाही थी कि अल्फाज भी अमानत होते हैं। तीसरे दरवाजे पर वे मालदार थे जिन्होंने ज़कात नहीं दी। उनके गले में आग के हार थे और सीने पर जलते हुए सिक्के रखे जा रहे थे। दुनिया में जिस दौलत पर घमंड था वही यहाँ अजाब बन चुकी थी। चौथे दरवाजे पर जालिम हुक्मरान और ताकतवर लोग थे। उन्होंने इंसाफ को कुचला, कमजोरों को दबाया। यहाँ कोई ताकत काम नहीं आ रही थी। फरिश्ते सख्त थे मगर इंसाफ के साथ। पांचवें दरवाजे पर वे लोग थे जो रिश्तों को तोड़ते थे, माँ बाप की नाफरमानी करने वाले, रिश्तेदारों से बेरुखी करने वाले। उनकी आहें सबसे दर्दनाक थीं क्योंकि उन्हें याद आ रहा था कि दुनिया में उन्हें कितनी आसानी से माफी मिल सकती थी। छठे दरवाजे पर दिखावे के इबादत गुजार थे। उन्होंने लोगों को दिखाने के लिए सजदा किया, अल्लाह के लिए नहीं। यहाँ उनके चेहरे जल रहे थे क्योंकि वही चेहरा उन्होंने दुनिया में दिखावे के लिए सजाया था। सातवां दरवाजा सबसे भयानक था। यहाँ मुनाफिक थे जो जबान से ईमान लाए मगर दिल से इनकार किया। उनकी आग सबसे गहरी थी क्योंकि उनका धोखा सबसे बड़ा था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब देखकर रो पड़े। आपने फरमाया, ए अल्लाह, मेरी उम्मत को माफ कर दे, वे नादान हैं। जहन्नम के इस मंजर में भी आपकी रहमत आगे थी। फिर आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा जिन्हें जहन्नम से निकाला जा रहा था। उनके दिल में राई के दाने जितना भी ईमान था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह आपकी शफाअत का असर है। ये सुनकर आपकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। जहन्नम का अजाब सख्त था मगर अल्लाह की रहमत उससे भी बड़ी थी। यह हिस्सा इंसान को डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए था, ताकि वो समझे कि हर अमल लिखा जा रहा है और हर लम्हा कीमती है। अभी भी वक्त है, लौट आओ, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जहन्नम की आग और सख्ती के बाद जब अल्लाह की रहमत का नूर फिर फैलने लगा तो सामने जन्नत के दरवाजे थे। ये दरवाजे लोहे या लकड़ी के नहीं थे बल्कि नूर, रहमत और सुकून से बने हुए थे। हर दरवाजा एक ऐसे अमल के नाम पर था जिसे अल्लाह ने बेहद पसंद फरमाया। हजरत मोहम्मद के चेहरे पर राहत झलकने लगी। आपने फरमाया, यही वह वादा है जो मेरे रब ने सच्चों से किया है। जन्नत की हवा में ऐसी खुशबू थी जो दिल के सारे ज़ख्म भर देती थी। पहला दरवाजा बाबुस्सलात था। यह उन लोगों के लिए था जिन्होंने नमाज को अपनी जिंदगी की रीढ़ बनाया। वे लोग दुनिया में किसी हाल में नमाज नहीं छोड़ते थे। यहाँ उनके चेहरे चांद की तरह चमक रहे थे। हर सजदा, हर रुकू आज सुकून बन चुका था। दूसरा दरवाजा बाबुस्सदका था। यहाँ वे लोग दाखिल हो रहे थे जिन्होंने छुपकर अल्लाह की राह में दिया। उनके हाथ खाली थे मगर दिल अमीर थे। फरिश्ते उन्हें सलाम कर रहे थे क्योंकि उन्होंने दुनिया में अल्लाह पर भरोसा किया था। तीसरा दरवाजा बाबुस्सबर था। यहाँ वे लोग थे जिन्होंने मुश्किलों में भी शिकवा नहीं किया। बीमारी, गरीबी, ताने सब झेल लिए मगर अल्लाह से नाराज नहीं हुए। आज उनके लिए हर दर्द आराम बन चुका था। चौथा दरवाजा बाबुल जिहाद था। यह सिर्फ तलवार वालों के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी था जिन्होंने अपने नफ्स से जिहाद किया, जिन्होंने गुनाह के मौके पर खुद को रोका। पांचवा दरवाजा बाबुल वालिदैन था। माँ बाप की खिदमत करने वालों के लिए।
यहाँ वे लोग थे जिन्होंने अपने आराम को कुर्बान कर दिया। जन्नत में दाखिल होते वक्त माँ बाप उनके साथ थे और फरिश्ते रास्ता बना रहे थे। छठा दरवाजा बाबुल अखलाक था, अच्छे किरदार वालों के लिए, जिन्होंने गुस्से को पी लिया, माफ किया और बुराई के बदले भलाई दी। जन्नत के ये बाशिंदे सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे थे। सातवां दरवाजा बाबुर रैयान था, रोजा रखने वालों के लिए। दुनिया में भूख और प्यास सहने वाले आज जन्नत के शरबत से सैराब किए जा रहे थे। हजरत मोहम्मद ने यह सब देखकर दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को इन दरवाजों से दाखिल फरमा। फरिश्तों ने आमीन कहा और जन्नत की फिजा और रोशन हो गई। आपने देखा कि कुछ लोग कई दरवाजों से बुलाए जा रहे हैं। जिब्रील ने बताया, ये वे लोग हैं जिनके अमल हर तरफ से नेक थे। यह मंजर साबित कर रहा था कि अल्लाह का दीन तंगी नहीं, रहमत है। हर इंसान के लिए कोई न कोई रास्ता रखा गया है, बस नीयत सच्ची होनी चाहिए। जब जन्नत के दरवाजे खुल चुके और जहन्नम की सख्ती दिखाई जा चुकी, तो हजरत मोहम्मद को वह अमानत सौंपी गई जो हर रसूल की जिम्मेदारी होती है, पैगाम पहुंचा देना। आपने आसमान की नजर नजर उठाई। आपके लबों पर शुक्र था और दिल में उम्मत का फिक्र। आपने देखा कि इंसान की किस्मत किसी एक अमल से नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी की नीयत और रास्ते से बनती है। अल्लाह ने किसी को मजबूर नहीं किया, हर एक को चुनने का हक दिया। जन्नत इनाम है, जहन्नम चेतावनी। आपने फरमाया, दीन मुश्किल नहीं है, मगर इंसान उसे मुश्किल बना लेता है। थोड़ी सी सच्चाई, थोड़ी सी शर्म और दिल में अल्लाह का डर, यही वह पूंजी है जो इंसान को बुलंदी तक पहुंचा देती है। आपने उन लोगों को देखा जो गुनाहों से भरे थे, मगर तौबा करते ही उनके नाम जहन्नम की सूचियों से काट दिए गए। फरिश्तों ने कहा, यह अल्लाह की रहमत है जो गुनाह से ज्यादा बड़ी है। यह मंजर बता रहा था कि जब तक सांस है, दरवाजा खुला है। फिर आपने उन लोगों को देखा जो छोटे छोटे अमल को मामूली समझते थे। किसी को रास्ता दिखा देना, किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी टूटे दिल को तसल्ली देना, ये अमल जन्नत में पहाड़ बन चुके थे। आपने उम्मत को यह भी सिखाया कि सिर्फ इबादत ही काफी नहीं, किरदार भी जरूरी है। सच्चाई, अमानत, हया और रहम, ये वो सिफतें हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब करती हैं। सबसे ज्यादा असरदार वह मंजर था जब आप सजदे में गिर पड़े। जहन्नम सामने थी, मगर आपके लबों पर एक ही दुआ थी, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। यह शफाअत थी जो क़यामत तक जारी रहेगी। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, ऐ मोहम्मद मैंने तुम्हारी उम्मत के लिए रहमत के दरवाजे खुले रखे हैं। यह सुनकर जन्नत की फिजा और रोशन हो गई। आखिर में आपने इंसान को यह समझाया कि दुनिया एक इम्तिहान है। यहाँ की कामयाबी अस्थायी है, मगर आखिरत की कामयाबी हमेशा की। जो आज सब्र करेगा, कल सुकून पाएगा। यह कहानी किसी डर के लिए नहीं, बल्कि जागने के लिए है, ताकि इंसान अपने दिल से पूछे, मैं किस रास्ते पर हूँ। जन्नत पास है अगर नीयत सच्ची है, जहन्नम दूर है अगर इंसान संभल जाए। यही हजरत मोहम्मद का पैगाम है, यही निजात की राह है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।